Hello. Hi everyone, good morning. So, as you know the protocol, I will keep everyone on forced mute and I would request you to not to show your videos like I'll be sharing screen today based on which we'll be proceeding with this lecture. All right, so couple of minutes in and we will start the lectures. Like we are just waiting for participants to enter. Now, in the meantime, let me just kind of ease the morning for everyone in the sense that last night, lot of students with lot of questions as to नया नया जोश है सब कुछ एक साथ ही करना है एक ही दिन में करना है so that way like it was good to see that pumped up attitude, right? However, I understand there are students with different learning curves who are attending this lecture, and as a teacher, it's my responsibility to ensure that everyone is on the same page. So, I'm going to assume that we are still at a very nascent stage in this chapter. We are just starting with it, and today I am going to teach you some concepts which are you know something different from the video lecture that you would have seen, and also a slightly different explanation. So this is something where you will be able to understand that how we are going to proceed with this lecture. So let's wait for a couple of more minutes till everyone joins in. Now, one more thing which I would want to point out in the beginning also, while I'll be discussing the concepts, sometimes you might have a doubt during the explanation, which is absolutely fine. However, let me complete that explanation first. ठीक है, एक बार आप पूरा explanation हो जाने दो, and उसके बाद then I will ask you, if you face certain doubts, then chat में you can then type in that doubt and we can then spend some time to discuss that. ठीक है. Right, so there is this one question which almost every student has, that okay, so I have a specific advice to students not spamming the chat.
ठीक है, please don't worry, and keep hold of all the redundant questions that you have. You know, they are not relevant right now, so it does not matter. And one important question that I would want to answer is the fact that homework को लेकर students के बीच में थोड़ा सा uneasiness था, but that's something which I messaged the students who asked me on the chat that how to go about it, what to do. आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी. See, when we start with something new as a process, तो उसमें starting में थोड़े से hiccups आते हैं. We go through certain ups and downs, but sooner or later we are able to get the process going in a smooth manner. So don't worry about the homework, don't worry about the completion that you would have done. आज मैं आपको बताऊंगा, आज I will explain, and based on that we will have a doubt discussion section in the next class. Okay, I'll take some important questions from my side which are something different, something that require you a different problem solving approach. All right, so request everyone to pay attention as we are going to start the chapter now. Great. So as I said, the approach will be that I will be using this touch screen, and on this touch screen I'll be explaining the basic concepts, and based on that I'll then take a pause and then let you know if any doubts are to be discussed. Great. So now video lecture में कुछ concepts cover हुए हैं, and उनके basis पे कुछ examples भी आप लोगों ने solve करे हुए हैं. In addition to those, there were some subtopics which were still to be discussed. So let me start with the first and a simple one, which is a simple, if you would notice in the booklet, starting topic. It is laws of chemical combination. Now this is something ये आप लोगों ने booklet के starting में देखा होगा, ठीक है. Now if I ask you in the booklet, so page number, ठीक है, booklet में actually 3 chapter एक साथ है, so I will quickly help you understand the chapter, the page number on which it is present. So when you will go to the starting page of the chapter itself, so it is on page 88. Okay, there are these laws that are present. There is simple law of conservation of mass. Okay, I'm not going to read it out and do a detailed analysis over here. I am hoping that each and every one of you has the booklet with you. Okay, it is something of a common sense that you should have, that you should sit prepared with the booklet, like I mentioned in the last class. So you must have the booklet ready, and usme come to page number 88, where there is mentioned laws of chemical combination. Now in this when you read, it's a simple law, talks about mass being conserved when a chemical change happens, when reactants convert into product. It's a simple statement which is true for chemical reactions. However, it is something which lost its meaning after we understood nuclear reactions and we understood mass energy equivalence. Now that is not something which we would want to go into the detail of, but as a quick outline to it, law of conservation of energy, that supersedes law of conservation of mass. That is something which you should be aware about as a matter of general knowledge. Okay, not something which really is part of the syllabus. Then
I understand that there are these other laws also that have similar sounding names. So there is law of definite proportion. There is law of multiple proportion. ठीक है, subsequent pages में आप notice करोगे, and law of reciprocal proportion. ठीक है, अब अगर आप मुझसे पूछोगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो द थिंग इज दैट दीज आर you know old laws. These are laws which didn't really work with you know they were something which were good when earlier chemists were performing experiments and trying to analyze reactions, but mole concept is the new way. ठीक है, as a simple difference, ये सब जो laws हैं ये सब mass के ऊपर based है. ठीक है, they are based on mass. एंड लेटर जब मोल कंसेप्ट का डिस्कशन हम लोग करेंगे तो यू विल रियलाइज दैट मोल कंसेप्ट इज मोर अबाउट नंबर्स. ठीक है, सो दैट शिफ्ट हैपेंड सम टाइम बैक एंड दैट इज द प्रोग्रेशन वी आर आल्सो गोइंग टू फॉलो. अब ये जो लॉज हैं, बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ one in individual one of them, understand that ये लॉज काइंड ऑफ ब्रेक डाउन अगर हम आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इनके की ड्रॉबैक्स में एक प्रॉब्लम ये भी आती है दैट आइसोटोप्स के चक्कर में वी आर नॉट एबल टू सी. well, law of conservation of mass does, but ये definite proportion, multiple proportion, reciprocal proportion, ये जो laws हैं इनके ड्रॉबैक्स सामने आने लगते हैं जब हम आइसोटोप्स का डिस्कशन करते हैं. नाउ so okay, I think it makes sense. I will keep the chat on I'll kind of block the chat for a while because a lot of you are spamming everyone, and please understand you have to be cooperative about this process क्योंकि जो बच्चे मोबाइल स्क्रीन्स पर ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनके लिए it becomes kind of a distraction because they are seeing these pop-ups time and again. So quickly I'll just block it for some time, and then when it is required I'll raise it again. All right, so coming back to these laws of definite proportion, multiple proportion and reciprocal proportion. अब इनके आप इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स देखोगे, ठीक है, तो दे आर वेरी सिंपल टू रीड, सिंपल टू अंडरस्टैंड. आप बुकलेट में ही एक एक करके जाओगे तो आपको समझ में आएगा. ऑन पेज नंबर 88 सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है आपके सामने पहला, जिसमें the simple statement goes from that the total mass of the reaction is going to be constant. जितना मास रिएक्टेंट्स का था पूरा रिएक्शन होने के बाद में वही मास प्रोडक्ट्स का होगा. And then there is an example that talks about it. Then there is this law of definite proportion. ठीक है, इसमें again it is something which becomes quite obvious to us now, but पहले के ज़माने में it used to be a law that कोई कंपाउंड है जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, से H2O कंपाउंड हो गया और उसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. नाउ अब ये कंपाउंड का कैसा भी सोर्स हो, लाइक इट सेट से टैप वाटर और रिवर वाटर और सी वाटर, जो कंपाउंड है H2O उसमें इन एलिमेंट्स का प्रपोर्शन हमेशा सेम ही रहता है.
एंड दैट प्रपोर्शन इज समथिंग विच इज प्रपोर्शन बाय मास, एज आई सेड कि ये सब मास के ऊपर बेस्ड लॉज है. अगेन एक क्विक एग्जांपल है एंड उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग आप फर्दर डेवलप कर सकते हो. देन देयर इज दिस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है, in which it takes a scene that if there are two elements which are forming two or more compounds, ठीक है, दो एलिमेंट से कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट है एंड ये कंपाउंड्स बना रहे हैं. अब दो एलिमेंट के अलग अलग कंपाउंड्स हो सकते हैं. सो एक कंपाउंड हो गया से CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. एक कंपाउंड हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. Now these, or what the law says is that with a fixed mass of one of the element, ठीक है, say let's say we are talking about multiple portion. So इसमें say carbon and oxygen were the elements and we chose the compounds of it which are carbon dioxide and carbon monoxide and carbon dioxide, ठीक है. So in this what it says is that for a fixed mass of carbon, ठीक है, अब आप कार्बन मोनोऑक्साइड में देखोगे तो रेशियो बाय मास कैसा होगा, कार्बन टू ऑक्सीजन का 12:16, ठीक है. कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है. एंड इन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12 है एंड ऑक्सीजन का यहाँ पर 32 हो जाएगा, दो एटम्स है ऑक्सीजन के. सो फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन, जैसा आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, दोनों केस में you have the same fixed mass. The ratio of the mass of other element is a simple whole number. So for a fixed mass of carbon, ratio of mass of oxygen in the two compounds that we have seen, ये किस रेशियो में हो जाएगा, 16:32, right? As you can see यहाँ पर here this is 16 and this is 32. So the ratio is a simple whole number ratio, that is 1:2, right? Now with this एक बेसिक आइडिया आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में लगेगा, ठीक है. देन सिमिलरली देयर इज दिस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. अब इसके स्टेटमेंट में इंग्लिश थोड़ी ज्यादा है, ठीक है. दिस इज समथिंग वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ language embedded in the question, that two elements and then they are combining with a third element and then उसके बाद different compounds जो form हो रहे हैं उनमें रेशियो के बारे में बात करा जा रहा है. Now I would not want to get into the detail of the entire statement again, ठीक है. What I would want to now discuss is how we can understand these statements and the questions associated with them. तो एक क्विक यहाँ पर ऑप्शन देखना, ऑप्शन समझना, that how is it going to work. So एक क्विक समरी आपको यहाँ पे समझ में आएगा. When I talk about law of constant proportion, ठीक है, I hope ये abbreviation समझ में आ रहा है. law of constant proportion, law of multiple proportion and law of reciprocal proportion, ठीक है. इनके स्टेटमेंट्स में आप नोटिस करना, जब डिस्कशन होता है तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की काउंटिंग हमें एक हिंट प्रोवाइड कर देती है. सो यू हैव
in law of constant proportion, two or more elements, ठीक है, this is something which is my habit of how or is written. So two or more elements and एक compound के बारे में बात हो रहा होगा. Then law of multiple proportion में दो elements and two or more compounds के बारे में बात हो रहा होगा. And law of reciprocal proportion में तीन elements and three or more compounds के बारे में बात, ठीक है. So this becomes something like a, you can understand as a general trick towards solving questions. इसके ऊपर जो बेस्ड होंगे, ठीक है. वैसे तो वेटेज कम ही रहता है, इसका खास कुछ वेटेज नहीं है, बट जस्ट एक important trick which might help you to answer some questions is right in front of you, ठीक है. अब आप नोटिस करना इस ट्रिक को मैं कैसे एक दो क्वेश्चंस के साथ में यूज करके आपको बताऊंगा. सो थोड़ा सा नीचे बुकलेट में आओ, FBO में क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 का डिस्कशन करते हैं. आई विल टेल द पेज नंबर ऑल्सो, कौन से पेज पर है ये. सो थोड़ा सा नीचे आप आओगे. या दिस इज इन द बुकलेट पेज नंबर 123, ठीक है. जो बुकलेट में मार्क किया हुआ है पेज नंबर, उस पर आप फोकस करो. इन दैट जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस हैं, दे आर बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन दीज लॉज, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है. सो अब इस ट्रिक को समझना, हम इस ट्रिक से कैसे इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे. So when you come across the first question, ठीक है, focus on the first question itself. First question में isotopes के बारे में बात कर दिया है, ठीक है. Now in the first question isotopes के बारे में बात कर दिया है. This implies that none of the laws are applicable, ठीक है. None of the ऑप्शन में जो लॉज दिए हैं A, B एंड C ऑप्शन में, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन एज वेल एज रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये तीनों ही आपके एप्लीकेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया यहाँ पर कि इन लॉज का ड्रॉबैक है दैट आइसोटोप्स के साथ में ये होल नंबर का रेशियो मेंटेन नहीं करते. सो दैट इज हाउ यू कैन आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन with this simple understanding, ठीक है. Now come to question number 2, ठीक है. Question number 2 में if you will notice, यहाँ पर observe करना that compounds की काउंटिंग आप करो, ठीक है. डेटा के ऊपर टाइम स्पेंड मत करो, डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है. मैं आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इन तीनों के स्टेटमेंट्स और इन तीनों का एनालिसिस के डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है. सम स्टूडेंट्स आर कंसिस्टेंटली आस्किंग मी, सर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है, उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दो. See, this is a consistent doubt which comes to almost all the students throughout the chapter, ठीक है. As I said, do not worry about it at all. It is something जिसका statement में काफी सारा back to back information embedded है, but आपको जरूरत नहीं है उस information में deep dive करने की, ठीक है. Listen to this trick and it will help you answer these questions. अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे कंपाउंड्स क्या क्या दिए हुए हैं. H2S दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है, ठीक है, एंड SO2 दिया हुआ है. ये 3 कंपाउंड्स आपके सामने हैं. एंड एलिमेंट्स के बारे में मैं बात करूं तो हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स के बारे में बात हो रहा है. नाउ
लेट मी जूम आउट अ लिटिल. अब आप यहाँ पे नोटिस करना कि इस काउंटिंग में जो कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स की काउंटिंग हुई है वो हमारी इस टेबल में, इन दिस टेबल ऑफ आवर्स, किससे मैच कर रही है. एज यू कैन सी that it is matching with LRP. LRP is something that stands for law of reciprocal proportion. ठीक है, तो आपको अब जरूरत नहीं पड़ी कि उसमें जो परसेंटेज दिए हुए हैं उनको बैठ के आप एनालिसिस करो, उनका कैलकुलेशन करो. इट इज गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो डोंट पुट अननेसेसरी टाइम इनटू इट. ठीक है, केमिस्ट्री इज समथिंग जहां पर आपको क्वेश्चंस वैसे भी फास्टर आंसर करने पड़ते हैं एज कंपेयर टू मैथ्स एंड फिजिक्स. ठीक है, दिस इज समथिंग विच विल बी अ लर्निंग दैट विल डेवलप ओवर टाइम. क्योंकि जब आगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का पोर्शन आएगा केमिस्ट्री का, तो उसमें यू विल फाइंड दैट क्वेश्चन पढ़ा और वो नॉलेज बेस्ड है. आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, मतलब आप कुछ सॉल्विंग नहीं करोगे उस केस में. तो you save a lot of time and that time is then utilized into maths and physics. ठीक है. So now let's ये इस क्वेश्चन को मैं क्लोज कर देता हूँ. This is something which works with the law of reciprocal proportion. Then question number 3. ठीक है, question number 3 आप रीड करो and look at the data again that उसमें क्या क्या मेंशन किया हुआ है. ठीक है, वापस से अब इसमें एक बार ऑब्जर्व करो कि क्या कंपाउंड्स हैं और क्या एलिमेंट्स हैं जिनका डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है. सो irrespective of the source, pure sample of water. So water H2O is one compound जिसके बारे में बात हो रही है. Its mass of oxygen and mass of hydrogen. तो एलिमेंट एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन के बारे में बात हो रहा है, राइट. सो नाउ एज यू कैन सी, ठीक है, दैट अगेन कमिंग बैक टू द टेबल. ठीक है, वापस से मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ. इफ यू लुक इनटू द टेबल अगेन, कैसा दिखेगा आपको. अब एक ही कंपाउंड के बारे में बात हो रहा है. ठीक है, एज यू कैन सी इन द टेबल जो हमारा फर्स्ट रो है. लेट मी टेक द कर्सर ओवर देयर एज वेल. सो नाउ विद दिस कर्सर यू कैन सी ये जो एक कंपाउंड है और दो एलिमेंट्स के बारे में बात हो रहा है. दिस इज लॉ ऑफ constant proportion. So your answer comes in a very simple manner here. Again, not into the mathematical details of it. Simple law of constant proportion. Okay. So this was something which was not covered in the video lecture. So I thought of spending some small amount of time on it and make you realize this trick with which you can, without getting much into the calculations, work with these questions. Okay. Now let me address the doubts that you have through the chat. So one of the doubts which a student has asked me कि sir notes हम लोग इसके बनाएं क्या. So आप parallelly work करते जाओ. ठीक है, आप अपने notes बनाते जाओ. However मैं at the end of the lecture इसका PDF, ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका PDF बना के भी आपके साथ share करूँगा. So understand that सबका स्पीड अलग अलग होता है. So I am not going to be like waiting for someone कि आप कॉपी करो और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, we are going to move ahead quickly. So जितना कॉपी कर पा रहे हो उतना ठीक है, otherwise don't worry, in the end I am going to share it again. Now apart from this आगे के डाउट्स डेफिनेटली हम लोग करेंगे अभी, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन. सो देयर इज दिस डाउट दैट इज बीइंग आस्क्ड, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इज इट द सेम? द आंसर इज यस, दे आर सेम. ठीक है, then there is a doubt, then numericals regarding these laws, are they really important? The idea is not really.
मतलब आप खुद इमेजिन करो कि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, देयर आर फार मोर इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स दैट आर गोइंग टू कम, बट स्टार्टिंग में हम लोग क्या है एकदम बेसिक से अप्रोच करेंगे, तो हम लोग कवर जरूर करेंगे, बट मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा कि इंपॉर्टेंस किसका कितना रहता है, ठीक है। ग्रेट। Now, again, there is this doubt, which is talking about law of reciprocal proportion and getting into the details of it. As I said, please understand it's a simple statement in which there is a lot of, calculation that you need to do. Don't worry about that calculation. It's something जहां पर ये हैक आपको उसको कैलकुलेट उसको समझने में हेल्प करेगा, ठीक है। Now, these were the important laws of reciprocal proportion, laws of chemical combination. There is one more which is mentioned in the booklet only, उसके आगे एक fifth की तरह से, which is law of constant volume. However, that volume वाला part is something that you can let it be right now. ये हम लोग जब आप next video lectures देखोगे तो उसमें gases के ऊपर एक छोटा सा discussion होगा जिसमें आपको बताया जाएगा that this law of volumes is also something which is pretty simple to work with. Okay, so there is one more doubt. Do we need to memorize the definitions? Well, no, you don't need to mug up the definitions. No, absolutely no. It is an objective paper, and this is something that you are going to be able to do pretty easily with the problem solving. Okay. Now, let me come to the next topic that I wanted to talk about. So after this, okay, I'm going to now pause the chat again. All right. अब इसके बाद जब आप लोगों ने टॉपिक डिस्कस करा था अपने लेक्चर्स में, सो यहाँ पर डेफिनेशंस काफ़ी सारी आपके सामने आई थी, डिफरेंट डेफिनेशंस आपने एक साथ इन द लेक्चर समझी होंगी, एंड दोज आर समथिंग विच आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दीज आर समथिंग विच यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। डिफरेंट terms that you came across like AMU, RAM, GAM, ठीक है, abbreviations है। अब मैं उसमें से एक important part को, ठीक है, वापस आपके सामने एक बार highlight कर देता हूँ and recap the important definitions. So there was this important link, ठीक है, this is again like an important concept which is a very important concept for each and every one of you to ensure ये link आपको समझ में आता है, ठीक है। So quickly यहाँ पर observe करना, अगर आपने notice किया हो, atomic mass unit, ठीक है, this is also called as U or Dalton as per the new conventions. This was defined in a very सिंपल मैनर। 1 AMU को हम एक सिंपल पर्सपेक्टिव से समझेंगे। 1 AMU was 1.67 into 10 raised to the power of -24 ग्राम, ठीक है। ये इसका एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है that AMU is a unit of mass. This is like a simple understanding. Detailed understanding is something which is based on the definition, ठीक है। सो डिटेल्ड डेफिनेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट, जो कि आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स में ऑब्जर्व किया होगा, दैट इट इज 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। इट इज 1/12 इनटू मास ऑफ 1 C12 कार्बन 12 आइसोटोप एटम। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था, ठीक है। फिर आपने एक और डेफिनेशन देखा था विच वाज मोल, ठीक है। अब मोल क्या था? मोल वाज अ काउंटिंग यूनिट, ठीक है। इन अ वेरी सिंपल सेंस इट वाज अ काउंटिंग यूनिट, जैसे उसमें वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया गया था कि डजन जैसे काउंटिंग यूनिट होता है। एक डजन कोई बोलता है तो एक डजन होता है मतलब 12, ठीक है।
तो वैसे ही यहां पर भी 1 मोल मीन्स a large number that is 6.02 into 10 raised to the power of 23. ठीक है, this is that large number. अब this is something, as I said, in a very simple understanding, counting unit है. However, इसका भी एक proper detailed definition है. ठीक है, detailed definition कैसा है? Detailed definition is that these are number of particles. ठीक है, एक्चुअली एटम्स के बारे में बोला जाता है डेफिनेशन में इन एग्जैक्टली 12 grams of C12. ठीक है, एग्जैक्टली 12 grams of C12 देंगे. अब ये जो दोनों डेफिनेशन है, दिस इज समथिंग जो कि सिंपल है and not confusing, easy to understand. However, what I would want to highlight as an important aspect here is that these are linked. ठीक है, IUPAC ने, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट, there is a standard. I am not sure if you are aware about it or not, but there is this international body called as IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. तो उन्होंने इस डेफिनेशन को आपस में लिंक करके डिजाइन किया हुआ है. दे आर पर्टिकुलरली डिजाइन्ड सो दैट दे आर लिंक्ड टू ईच अदर. किस तरीके से आप यहाँ पे नोटिस करना, मैं किस लिंक के बारे में बात कर रहा हूँ. द लिंक इज बिटवीन AMU एंड मोल. ठीक है, दिस लिंक इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान से सुनना. अभी ये ऊपर की डेफिनेशंस हैं, उन्हीं को मैं यूज कर रहा हूं. ठीक है, कैसा लिखा है? 12 grams of C12 has 6.02 into 10 raised to the power of 23 atoms. ठीक है, हमने ये वाला डेफिनेशन यूज करा जो मोल का डेफिनेशन है. ठीक है, अब धीरे धीरे नोटिस करना मैं इस डेफिनेशन से कैसे AMU की डेफिनेशन पे आ जाऊंगा. ठीक है, सो 12 ग्राम C12 अगर लेंगे तो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट हमें पता पड़ता है कि उसके अंदर इतने एटम्स हैं. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड समथिंग इंपॉर्टेंट है. अगर मैं आपसे यूनिटरी मेथड अप्लाई करने के लिए पूछूं कि एक एटम, ठीक है, ऑफ C12 का मास कितना होगा, तो आप क्या करोगे? जो आपने जूनियर क्लास में सीखा है, आप ऐसा यूनिटरी मेथड जिसको हम बोलते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो और वो लगाना शुरू करते हो. तो इससे आपको समझ में आ जाएगा दैट दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 12 into 1 upon 6.023 into 10 raised to the power of 23. ठीक है, ग्राम्स. ठीक है, अब नोटिस करना, राइट, ये क्या था? दिस वाज मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12. ठीक है, ये हमने यहाँ पर ऊपर लिखा था. अब ये जो वैल्यू है 1 upon 6.02 into 10 की पावर 23, ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, थोड़ी सी मैथ्स लगेगी, इसको जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन मतलब ये डिनोमिनेटर की चीजों को न्यूमरेटर में लिखना है. सो दिस विल बिकम, दिस वैल्यू हियर will become 1.67 into 10 की पावर minus 24. ठीक है, and this is, as you can see, which relates back to, ठीक है, let me zoom out a little. This is something which relates back to the definition of AMU that we just talked about. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है
ठीक है, this many grams is something which I can write as 12 AMU. ठीक है, I hope everyone understood this link. ठीक है, एक बार मैं quickly वापस से reiterate कर देता हूँ. The objective was, ठीक है, ध्यान से सुनना, the objective was to establish an important link between AMU and mole का definition. तो उसके लिए आपको ये डेफिनेशन डेफिनेटली पता होनी चाहिए, एंड देन यू शुड अंडरस्टैंड हाउ IUPAC हैज डिजाइन्ड दीज डेफिनेशंस सो दैट दे आर लिंक्ड टू ईच अदर. ठीक है, अब इसमें हमने लिंक कैसे स्टार्ट करा? हमने स्टार्ट करा मोल की डेफिनेशन से, सेइंग 12 grams of C12 has this many atoms. This is an experimental understanding that we have and comes from the definition of mole. Now the thing is that this leads to, जैसे मैंने यहाँ पे एक यूनिटरी मेथड करके बताया आपको कि अगर 12 ग्राम के अंदर इतने एटम्स हैं, सो एक एटम का कितना मास होगा, ये आप सिंपल यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो. Now once that unitary method is done, you can then calculate कि mass of one atom comes out to be this number, which was what the definition of AMU was, this 1.67 into 10 raised to the power of minus 24. This was the conversion between AMU and grams. ठीक है, और you can now put it here. ये कैसा है? mass of one atom of C12. ठीक है, तो अब इस 12 को मैं इधर लेके आ जाऊं तो ये AMU क्या हो जाएगा? 1 AMU will be 1 by 12 into mass of one atom of C12. ठीक है, ये लिंक हो गया. Now understand the next thing कि मैंने आपको ये क्वेश्चन क्यों कराया है. Now this question or this concept that I have told you is something which helps you answer a very common trick question. So in the booklet, ठीक है, observe in the booklet there is this question which I will ask you to go through. So in mole concept, come to page number 140. Just a second. I'll just double confirm where that question went. So it is page 144 पर, right? So page 144 पर question number 6 आप observe करो. ठीक है, I'll give you some time to go to the question. Booklet में scroll करो and read that question. ठीक है, it is not a simple question to understand, and also understand one more thing. ठीक है, I am getting some answers from the students, but understand one more thing. If you will go online and look at multiple sources, जहाँ पर आपको इसके सोल्यूशन मिलेंगे. ठीक है, क्योंकि आज की तारीख में ना कंटेंट सब जगह अवेलेबल है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट जरूरी नहीं है कि कोरा पे लिखा हुआ हर आंसर सही हो. ठीक है, कोरा में आपके जैसे स्टूडेंट्स जो कि अभी मुझे बी ऑप्शन का आंसर दे रहे हैं, those students are giving me incorrect answer. बी आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का. ठीक है, बट आपको मिलेगा, आपको कोरा पे या आप इधर उधर की वेबसाइट पे चले जाओगे तो आपको ये रैंडम आंसर मिल जाएगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक यू देमसेल्व्स जस्ट गो एंड पोस्ट एनीथिंग. अब वहां पे कोई वैलिडेशन तो कोई है नहीं, कोई चेक तो है नहीं. सो प्लीज डू नॉट कम टू मी सेइंग दैट सर कोरा में तो ये लिखा है.
मतलब this is going to be something which I am going to be not taking kindly. Understand something, if you have genuine concerns, like you are confident about it, yes, do debate and discuss, but एक basic courtesy आपको रखनी पड़ेगी जहां पर you do not go ahead and just quote any random source. All right, so coming back to the question. अब इस क्वेश्चन का, ठीक है, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आसान क्वेश्चन है, एक बार में क्लिक हो जाएगा. लेट मी फर्स्ट टेल यू द आंसर. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. ठीक है, इट काइंड ऑफ रिमेन्स अनचेंज्ड. So that is the answer to this question. अब समझना that what is the underlying concept. मैं समझाता हूँ what is the underlying concept. तो इसीलिए मैंने आपको ये लिंक के बारे में समझाया, इस लिंक को एस्टैब्लिश करके बताया. ध्यान से सुनना. आप एक डेफिनेशन चेंज करोगे, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आप नोटिस कर रहे हो कि एएमयू का डेफिनेशन चेंज हो रहा है. ठीक है, आप एएमयू का डेफिनेशन चेंज कर दो तो ऑटोमेटिकली देन मोल का डेफिनेशन भी एडजस्ट हो जाएगा. It has to link. They can't be two disconnected definitions. तो as a result जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, उसमें पूछा गया है मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. तो ये मास तो क्या हो गया, मास एंड नंबर. ध्यान से सुनना, ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना. आई अगेन स्विच ऑफ द चैट for everyone's benefit. ध्यान से सुनना. मास एंड नंबर, ये तो हमारे लिए क्या हो गया, these are fundamental quantities that we are analyzing. अभी AMU, ग्राम, मोल, डजन, ये सब यूनिट्स हैं जो हम लोग डिफाइन करते हैं so as to describe these quantities. Now the thing is, अगर आप डेफिनेशन चेंज कर दोगे तो उससे जो मास है सब्सटेंस का या जो नंबर है, काउंटिंग है, वो चेंज नहीं हो जाएगी. दैट इज द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट. द डेफिनेशंस आर चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, दैट इज ओके. बट जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो क्वेश्चन में पूछा है कि मास ऑफ सब्सटेंस के साथ में क्या होगा, तो मास ऑफ सब्सटेंस वही रहेगा भाई, मास ऑफ सब्सटेंस चेंज नहीं होगा. ठीक है, अब आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारे डिस्कशन मिल जाएंगे जहां पर पूरा एनालिसिस इन डेप्थ करा होगा, बट दिस इज व्हाट आई बिलीव इज द राइट वे टू लुक एट इट. ठीक है, आई होप दिस इज नाउ अबंडेंटली क्लियर टू द स्टूडेंट्स. ठीक है, इसमें अब आपको कुछ डाउट है, बताओ. Okay, so there is one doubt that came that there is this figure of 1.99 something into 10 raised to the power of -23. ठीक है, this is something जो 1.99 into 10 की power -23 is mass of one atom of carbon. ठीक है, that is what it is. ठीक है, let me do an explanation again. ठीक है, give me 1 minute and I will explain it again. आप लोगों ने क्वेश्चन पहले पढ़ा, ध्यान से वापस से ध्यान से ऑब्जर्व करना. क्वेश्चन नंबर 6 जो पेज 144 पर है, इट टॉक्स अबाउट, ठीक है, इट टॉक्स अबाउट डेफिनेशन बीइंग ट्वीक्ड एंड उससे मास का जो मेजरमेंट है उस पर क्या फर्क पड़ेगा. तो वही मैंने आपको समझाया दैट मास एंड नंबर, ठीक है, आई विल रीराइट हियर, मास एंड नंबर आर
फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। वेयर एज ये जो हम लोग लिखते हैं AMU, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, या फिर नंबर्स के लिखते हैं हम लोग डजन या मोल एक्सेट्रा, दीज आर काउंटेड, दीज आर यूनिट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करा जा रहा है कि इन यूनिट्स के साथ में, ठीक है, इन यूनिट्स के साथ में वी आर प्लेइंग अराउंड। नाउ एज आई सेड दैट यूनिट्स के साथ में प्ले अराउंड करने से जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो चेंज नहीं होंगी। मास जितना था उस सब्सटेंस का वो उतना ही रहेगा। एज अ डीपर अंडरस्टैंडिंग टू इट, आई एक्सप्लेन्ड यू दैट व्हाई इज इट सो, बिकॉज AMU और मोल का डेफिनेशन आपस में इंटरलिंक्ड है एंड दिस इज इंटेंशनल बाय डिजाइन, ठीक है। All right, so with this then now I can move on to the next topic that I wanted to come to next discussion. तो ये definitions के अलावा, ठीक है, let me come to the next understanding. अब इसके अलावा आपने देखा होगा there were more definitions, ठीक है। ये दो जो definition थी वो सबसे important definitions है which I wanted to discuss. Then there are these definitions which you come across, ठीक है, atomic mass, then you come across relative atomic mass, and then you come across gram atomic mass, ठीक है। ये आप definitions you come across for different elements, ठीक है। let me describe here. अब मैं अगेन आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दोज डेफिनेशंस बिकॉज वो डेफिनेशंस वीडियो लेक्चर्स में अच्छे से कवर करी गई थी। मैं अब बस आपके लिए उस चीज को आसान बना रहा हूँ, ठीक है। आपको उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए आई वुड रेकमेंड डोंट गो इन डिटेल्स, ठीक है। जैसे मैंने पिछली डेफिनेशन when I talked about AMU and mole, that is where I asked you to go into the details of the definition, but यहाँ पर don't go much into the details of the definition. आपको इन सब के बारे में अगर पूछा जाए तो ये बहुत सिंपल सा रहता है, ठीक है। You have say एलिमेंट नाइट्रोजन है, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन एज एन एलिमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका एटॉमिक मास होता है 14 AMU, 14 atomic mass unit. अब relative atomic mass RAM will be just 14, ठीक है। there will be, यहाँ पर highlight कर देना no units, ठीक है। just simply without unit just value put कर देना, ठीक है। एंड अगर कोई ग्राम एटॉमिक मास पूछेगा नाइट्रोजन का तो आपको आंसर कर देना है 14 ग्राम्स, ठीक है। ये ग्राम एटॉमिक मास ग्राम्स की यूनिट में होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे किसी दूसरे एलिमेंट के बारे में बात करूं, से सल्फर के बारे में, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के बीच में कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। आई होप इतना बेसिक्स अपने को क्लियर है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, एटॉमिक मास इज 32 AMU, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, जस्ट द नंबर 32 एंड ग्राम एटॉमिक मास विल बी जस्ट सिंपली राइटिंग 32 ग्राम्स, राइट। नाउ इतने पार्ट में कुछ डाउट है सो आप पूछ सकते हो। आई विल अगेन रीस्टार्ट द चैट बिकॉज ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो आपको काफी सारे इनफैक्ट जूनियर क्लासेस में काफी बार बताया जाता है, ठीक है। हाँ, सो इसमें ओके, देयर इज वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट केम टू मी that should we remember the atomic weight or atomic mass of elements, ठीक है। so there are two clarifications which I will do here. chemistry में ना
ठीक है, केमिस्ट्री में एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, ठीक है, ये दो चीजें मैं इंटरचेंजेबली यूज करूंगा क्योंकि इसका यहाँ पर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, फिजिक्स में आप लोग नोटिस करोगे बाद में जाके कि मास एंड वेट इन दोनों को आपको ध्यान से देखना होगा। एंड अभी यहाँ पर it is something which is interchangeably used, so don't worry about that। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो मेरे सामने आया है कि हमें मेमोराइज करने हैं, मेमोराइज यू नो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, तो क्या क्या मेमोराइज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। yes, this is something which will be useful at least in the first go। so 1 to 20 एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए आपको एलिमेंट का नाम, ठीक है, उनका नेम, उनका एटॉमिक नंबर, इनफैक्ट उनका सिंबल, आई शुड से फर्स्ट उनका नेम, उनका सिंबल, देन उनका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ये आपको डेफिनेटली मेमोराइज करना है। ठीक है, दिस इज समथिंग विच यू शुड डेफिनेटली डू। ठीक है, नाउ all right, so let me turn off the chat again। okay, so ये आपके सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट देयर इज a very simple understanding that everyone should have, that you should know how to read molecules। ठीक है, some basic molecules के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए that if I tell you some certain simple molecule तो आप you know identify नहीं कर पा रहे हो कि इसको मैं इसका फॉर्मूला कैसे लिखूं। ठीक है, for example if I ask you to write aluminum sulfate, okay, if this is something that I am asking you to write, so aluminum sulfate is Al2SO4 whole thrice, ये आपको रीड करना आना चाहिए। ठीक है, it is something which is a basic chemistry knowledge that I am expecting from all the students irrespective of the board they are from, be it ICSC or be it IGCSC or be it SSC। like कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनके नाम और उनके फॉर्मूलाज आपको बेसिकली पता होने चाहिए। कल को मैं ऐसे बोलूंगा सोडियम कार्बोनेट, तो दिस इज नॉट समथिंग कि आपको पता ही नहीं सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। सो यू शुड बी एबल टू क्लियरली राइट इट दैट दिस इज व्हाट सोडियम कार्बोनेट इज। सो ये एक बेसिक एक्सपेक्टेशन मेरी आपसे रहेगी। Now, based on these basic expectations, I am also going to expect you guys to be able to calculate the molecular weight also। ठीक है, एक तो molecules read करना आना चाहिए and calculation of molecular weight भी सबको clear होना चाहिए। calculation of molecular weight क्या होता है? sum of atomic weight or mass, you can say, of all atoms in the molecule। that is what you have to read and write for। जैसे for example if I took this example Al2SO4 whole thrice and मैं आपसे पूछूंगा इसका molecular weight कितना होगा, ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 2 times, इसमें 2 अल्यूमिनियम के आइटम है, ठीक है, एंड अल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27।
देन इसमें सल्फर के कितने एटम्स रहेंगे, ठीक है, आई होप ये रीड करना आता है. देयर आर 3 एटम्स ऑफ सल्फर एंड ईच एटम हैज अ एटॉमिक मास ऑफ 32. ठीक है, देयर आर 2 अल्यूमिनियम एटम्स, देयर आर 3 sulfur atoms, and then if you will notice 4 into 3 12 ऑक्सीजन के एटम्स है और हर एक का एटॉमिक मास है 16. ठीक है, देयर आर 12 ऑक्सीजन एटम्स. तो ये बेसिक रीड करना सबको आना चाहिए. ठीक है, एज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है, आई विल आस्क यू टू डिटरमाइन not atomic mass but molecular mass of H2C2O4.2H2O. ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट. ठीक है, ठीक है, दिस इज नॉट अ कॉमन कंपाउंड. अब मैं इसके लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आपको पहले से पता होगा. ठीक है, but this is something which as an example आप लोग डिटरमाइन करो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा एंड लेट मी नो द आंसर. great, so ठीक है, I got the answers from most of the students. Now I'm going to switch off the chat again. Great, so yes, the answer is 126. कैसा, अब आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 2 कार्बन के एटम्स हैं, 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, एंड अब आप यहाँ पर भी नोटिस करना 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, तो मैं उनको डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, दैट 2 times 18 लिख दो यहाँ पर. ठीक है, ये मैं बोल दूंगा ऐसा, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड वाटर, ऐसे भी बोल सकता हूँ. या फिर मैं इसी चीज को जैसे एलिमेंट्स को ऐड करा था वैसे भी कर सकता हूँ. मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं एंड 2 ऑक्सीजन के एटम्स थे. ठीक है, सो आई कैन राइट दिस in this manner as well. Just a second. Yeah, this can be also written as this. So I hope ये basic calculation सबको समझ में आती है molecules के बारे में. ठीक है, then there were these basic definitions of gram atom, gram molecule. ठीक है, ऐसे बीच में ये हाइफन का साइन लगता है, ये ऐसे डैश इसको हम कहते हैं, ये डैश लगता है, या ग्राम आयन. ठीक है, ये थोड़े से एक टर्म्स हैं जो कि आपको कई बार क्वेश्चंस में पॉपअप होते हुए दिखेंगे. नाउ दीज आर अगेन टर्म्स व्हिच आर यू नो जस्ट सिंपली मीन द नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, ग्राम एटम मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम. ग्राम मॉलिक्यूल मीन्स नंबर ऑफ mole of molecules, and gram ion means number of mole of ions. ठीक है, this is something जो एक definition है, मतलब these are you can say more definitions, so don't worry about them a lot. बस simply आपको ये चीज समझ में आना चाहिए. मैं कल को ऐसे बोलूंगा आपको कि you know I have 1 gram molecule. ठीक है, I have 1 gram molecule water, so this implies that I have 1 mole H2O molecules. That's it. बस इसी तरीके से रीड करना है. Okay, now this brings me to the you know important concept जिसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बिल्ड करे हुए हैं इन द चैप्टर, which is the concept of mass mole relationship. ठीक है, so let me highlight that mass mole relationship. The idea is कि अगर आपको किसी सब्सटेंस का मास दिया हुआ है तो आप उसके मोल्स बता सकते हो, और मोल्स दिए हैं तो मास बता सकते हो.
ठीक है, and it is a relationship but to be used with a caution. ठीक है, so again it's an important point here that I'm highlighting, that use based on type of substance. ठीक है, so इसमें type of substance में notice करना, I will highlight that there will be two types of substance that we are going to talk about. There will be substance like helium, ठीक है, diamond, इन substances के लिए क्या है, what is the special aspect, that यहाँ पर the substance exist in form of atoms only. ठीक है, substance exists in form of collection of atoms, I should say, in form of collection of atoms of elements. ठीक है, जैसे let me talk here and say helium gas का एक सैंपल रखा हुआ है या डायमंड आपके सामने रखा हुआ है, तो इनमें जो सब्सटेंस है वो इंडिविजुअल एटम्स के फॉर्म में रहेगा. ठीक है, द अदर कैटेगरी वुड बी समथिंग लाइक अमोनिया. ठीक है, अमोनिया गैस हो गया, या फिर O2 गैस हो गया. ठीक है, या फिर H2SO4 हो गया. तो इस केस में द थिंग इज दैट दिस सब्सटेंस, these substance they exist in form of collection of molecules. ठीक है, they exist in form of collection of molecules of these types. ठीक है, अब इसके वजह से फॉर्मूला जो है मास मोल रिलेशनशिप का, उसमें एक छोटा सा चेंज रहता है विच यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज. ठीक है, हम लोगों ने एक जेन्युइन आई वुड से एक जो बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है विच इज अ मास मोल रिलेशनशिप, उसको नोटिस करना हम लोग कैसे यूज करेंगे. यहाँ पर moles of atoms, ठीक है, moles of atoms of substance will be equal to mass of substance, ठीक है, in grams upon यहाँ पर atomic mass of substance, or you can say atomic mass of the element. आपको लिखना पड़ेगा ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल में लिख दो या AMU में लिख दो, एक ही बात है. ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना जो मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ सब्सटेंस आ रहे हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एटॉमिक मास यूज करना पड़ेगा. ठीक है, एंड यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, जो भी सब्सटेंस है वो क्योंकि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके कितने मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे. मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस विल बी mass of substance again in grams upon, यहां पर नोटिस करना molecular mass of compound, or you can say molecular mass of molecule in gram per mole. ठीक है, तो यहां पर डिनोमिनेटर में molecular mass आएगा. ठीक है, now let me open the chat option again and let me know if you understood this and if you have any questions on this. ठीक है, so
अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस और अच्छे से समझ में आएगा, लाइक स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी टू रिपीट वंस अगेन, तो आपको इसकी क्लैरिटी मिलेगी। मैं अभी एग्जांपल दूंगा, ठीक है, तो उससे आपको इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। लेट मी टेक सम मोर एग्जांपल्स, अदरवाइज आई थिंक द बेसिक इज समथिंग दैट यू अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ let me switch off the chat option again. So अब इसमें ऑब्जर्व करना that how to use this। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है, यू हैव अ सिंपल एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू दैट डिटरमाइन नंबर ऑफ carbon atoms present in say number of carbon atoms present in 22 grams of CO2, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने। अब ठीक है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप अभी आंसर मुझे बताने लग जाओ, अभी लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड कि मैंने ये क्यों बताया है, ठीक है। अब लेट मी ऑल्सो काइंड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आइटम डाल देता हूं मैं, कि कितने मोल्स कार्बन आइटम है। तो अभी क्या हो जाएगा, कोई स्टूडेंट जब ये क्वेश्चन रीड करेगा स्टार्टिंग में तो देखेगा कि यार मोल्स पूछे हैं और मास दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है, मैंने फॉर्मूला सीखा है, मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन, ठीक है, मास गिवन अपॉन, ठीक है, अब एटॉमिक मास लगा देता हूँ, ठीक है। कोई कोई बच्चा ऐसे सोचेगा और फिर आंसर कर देगा एकदम ब्लाइंडली दैट 22 अपॉन, अब एटॉमिक मास तो कार्बन एलिमेंट का यूज करके 12 एंड विल ट्राई टू रिपोर्ट दैट एज एन आंसर। तो ये हो गया आपका एकदम गड़बड़, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। हो सकता है कोई और दिमाग लगाए, कोई बोले कि अच्छा नहीं, मास गिवन तो एक ही है, ठीक है, मास गिवन इन ग्राम्स तो एक ही है 22, बट नीचे ना एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास यूज करना चाहिए था, ठीक है। एंड इन फैक्ट लेट मी काइंड ऑफ चेंज द क्वेश्चन अ बिट, ठीक है, लेट मी स्लाइटली चेंज द क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ कार्बन लेट मी यूज ऑक्सीजन, ठीक है, सो इट विल काइंड ऑफ फर्दर एक्सप्लेन व्हाट आई वांटेड टू डू, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे ने 16 लिख लिया, 16 लिख लिया ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूज करके, बट ये गलत आंसर है। अब किसी ने बोला कि नहीं, मास गिवन जो है वो 22 है और मॉलिक्यूलर मास में यूज कर लूंगा तो मेरा आंसर मॉलिक्यूलर मास यूज करने से आ जाएगा 44, ठीक है। अब द थिंग इज दैट ये भी आपका गलत आंसर है, क्योंकि आपको अब जो मैंने ये ऊपर पॉइंट बताया है उसका अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली ध्यान से समझना है। सी यहाँ पे नोटिस करना, आपको जो सब्सटेंस दिया गया है वो है CO2, ठीक है। अब ये CO2 अगर मैं आपसे पूछूंगा किस टाइप में आता है, तो आप ऊपर ऑब्जर्व करना, दिस कम्स अंडर द टाइप ऑफ this that substance that exists in form of collection of molecules। तो आपका फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। तो अब आपके लिए नोटिस करना कि करेक्ट तरीका कैसा रहेगा, ढंग से लिखना यहाँ पर, मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, CO2 हमारा सब्सटेंस है, मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, moles of CO2 molecules will be equal to mass of CO2 given in grams upon molecular mass
ऑफ CO2 इन ग्राम्स पर मोल। तो ये अब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, 22 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास CO2 का होता है 44, ठीक है। ये आपको मिल गया मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना दैट दिस इज नॉट योर आंसर येट, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वुड से इज द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला, बट ये अपना अभी आंसर नहीं आया है, क्योंकि इससे अभी अपने को मिला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, दोबारा यहाँ पे ऑब्जर्व करो। आपसे पूछा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये आपसे पूछा था, ठीक है। अब द प्रॉब्लम इज कि इनका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अब इसमें फॉर्मूला के साथ साथ लॉजिक भी लगेगा। सो यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करना एज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट फॉर्मूला विल हेल्प टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड देन लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंड लॉजिक इज प्राइमरीली योर यूनिटरी मेथड, ठीक है। नाउ यूनिटरी मेथड वापस से यहाँ पे समझ लेना कैसे अप्लाई होगा। सो अभी फॉर्मूला से मेरा रिजल्ट कितना आ गया, फॉर्मूला से मेरे को आ गया दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 molecules is 22 by 44, that is 0.5, ठीक है। बट मुझसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे। तो यहां पर अब फॉर्मूला नहीं है, यूनिटरी मेथड है। आप नोटिस करोगे कि CO2 में कितना ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर 1 मॉलिक्यूल CO2 का है तो उसमें देर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर ये 1 मोल होगा तो इसमें 2 मोल, ठीक है, 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे इसके, तो इसमें 2 मोल एटम हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो अगर ये 0.5 मोल है, ठीक है, 0.5 मोल मॉलिक्यूल है, तो कितने मोल इसमें ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो अब ये क्या हो गया, यूनिटरी मेथड, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर बताना है, राइट। सो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, 1 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5, तो आपका क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा 1। सो दैट इज योर आंसर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये समझ में आया। तो ये एक डिफरेंशिएशन समझना इंपॉर्टेंट है। लेट मी एक बार क्विकली गो थ्रू इट अगेन सो दैट आप लोगों को ये चीज क्लियर हो, क्योंकि काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट दिस थिंग, ऑलराइट। जब आप मास मोल का रिलेशनशिप यूज कर रहे हो तो द इंपॉर्टेंट मैसेज इज डू नॉट यूज ब्लाइंडली, ठीक है। ऐसा नहीं बस कुछ भी देखा और डाल दिया, समझ के। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। सो ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला रट लिया और काम चल जाएगा। You will have to really be analytical, you have to really be conceptually clear. तो अब इसमें आपको बताया जा रहा है that you have this mass mole relationship. However, इस mass mole relationship को थोड़ा cautiously use करना होता है depending upon the type of substance that we are given the data of. So let's say ये helium, डायमंड ऐसे सब्सटेंस है जिसके अंदर एटम्स ही प्रेजेंट है,
तो उस केस में फॉर्मूला में जब हम मास अपॉन एटॉमिक मास करेंगे तो हमें मोल्स ऑफ एटम मिलेंगे सब्सटेंस के, ठीक है। एंड अगर सब्सटेंस हमारा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है लाइक दीज, अभी जैसे मैंने CO2 का एग्जांपल लिया, तो CO2 भी ऐसे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना, CO2 गैस। तो उस केस में मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ये ध्यान से यहां पर ऑब्जर्व करना, मोल्स ऑफ molecules of substance, this is mass of substance upon the molecular mass, ठीक है। तो अब ये चीज, इसको मैंने एग्जांपल के थ्रू इलस्ट्रेट करके बताया आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें जो सब्सटेंस दिया हुआ है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो फॉर्मूला लगाने से हमें मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। उसके अंदर अगर कुछ और फर्दर फाइनर डिटेल्स पूछी हुई हैं तो आपको फॉर्मूला के साथ साथ लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया आपको CO2 का मास है, ठीक है, एंड इस CO2 के मास के साथ में अब आपको ऑक्सीजन के एटम पूछे हुए हैं, तो मॉलिक्यूल और एटम के बीच का तो फॉर्मूला नहीं है ना डायरेक्टली, फॉर्मूला प्लस लॉजिक दोनों वर्क करेगा। तो यहां पर नोटिस करना ये गलत तरीके थे, सही तरीका है फॉर्मूला लगाया मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, उससे मिले मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, कि कितने CO2 के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, कितने मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल हैं। अब जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया, फॉर्मूला आपने करेक्टली लगा लिया, आपको मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल मिल गए, बट आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम थे। तो इसके बाद में फॉर्मूला नहीं है, इसके बाद में लॉजिक है, यूनिटरी मेथड है। यू हैव टू सिंपली सी द फॉर्मूला कि CO2 में एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम है, राइट। तो एक मोल के अंदर 2 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे एक मोल मॉलिक्यूल में। तो हमने जो ऊपर कैलकुलेट करा था 0.5, उसमें कितना होगा, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यूनिटरी मेथड लगाया और आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है। लेट मी स्विच ऑन द चैट ऑप्शन इन केस देयर इज एनी डाउट, पर्टिकुलर डाउट दैट आई वुड वांट टू एड्रेस, ठीक है, लेट मी नो। यू कैन हैव ऑल्टरनेट मेथड्स, ठीक है। आई एम नॉट आस्किंग कि आप और कितने तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। वेरी वेल, यू कैन डू इट using multiple ways, you can do it using multiple methods। जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है आप धीरे धीरे और अच्छे से कर सकते हो, बट आई थिंक दिस इज समथिंग which will help you understand how you clearly use these formulas, ठीक है। All right, now let me take one more quick example, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बिफोर वी क्लोज द क्लास फॉर द डे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचा है हमारे पास में। सो आई विल स्विच ऑफ द चैट ऑप्शन, ओके। नाउ एक और एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in 18 ml of water, ठीक है। एंड मैंने आपको डेंसिटी दे दी है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, ठीक है। 1 ग्राम पर ml या 1 ग्राम पर cc भी बोल देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, बट ठीक है अभी मैंने आपको 1 ग्राम पर ml दिया है, ठीक है। सो see I am pretty sure that there are students who are brilliant, उनका ऑलरेडी आंसर आ गया है, great, but let me start with the solution using the similar approach that we had earlier। so अब इसमें एक छोटा सा नया सा डेटा पॉइंट क्या है कि वॉल्यूम और डेंसिटी दे दिया है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूले वगैरह तो मास के टर्म्स में देखे थे, तो लेट मी क्विकली गेट दैट मास
is density into volume. So I will get that mass of H2O. Okay, mass of H2O is 18 grams. अब आपसे पूछा है मास ऑफ H, आपको दिया गया मास ऑफ H2O इतना है, आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं. नाउ थैंकफुली नो वन इज गोइंग टू हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला. ठीक है, एक बार इलेक्ट्रॉन सामने आ गया तो उसके बाद सबको तो नहीं बट थोड़े बच्चों का ऐसे चक्कर आ जाएगा कि अरे ये कैसे अचानक से, इलेक्ट्रॉन तो कहीं फॉर्मूला में फीचर ही नहीं कर रहा था, कैसे हम करेंगे. तो वापस से ध्यान से सुनना, द अप्रोच विल बी फॉर्मूला प्लस लॉजिक. सो लेट मी नाउ इंट्रोड्यूस द फॉर्मूला फर्स्ट. ठीक है, फॉर्मूला से हम जाएंगे तो हमें फॉर्मूला कौन सा वाला यूज करना चाहिए, क्योंकि अपना सब्सटेंस टाइप 2 वाला है जो हमने देखा था यहाँ पर, दैट इट इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन द सब्सटेंस विच इज मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन. तो वाटर में वही है, तो मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, ये हमारे लिए हो जाएगा दैट मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स आर मास ऑफ H2O गिवन, ठीक है, इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O. ठीक है, in gram per mole. So this will be 18 upon 18 and our answer comes out to be 1. So we have 1 mole, or moles of H2O molecules, number of moles of H2O molecules. ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछेगा नंबर ऑफ H2O molecules कितने हो गए, तो मैं क्या आंसर करूंगा, 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻⁻23. ठीक है, क्योंकि एक मोल इतना ही होता है. इसको हम लोग ऐसे एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, आपने वीडियो लेक्चर्स में देखा होगा, दिस इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस कांस्टेंट. ठीक है, सो यू हैव नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स. अब इसके आगे फॉर्मूला अब मुझे इतना ही हेल्प कर रहा है. ठीक है, इसके आगे अब मैं फॉर्मूला के साथ में नहीं प्रोसीड कर सकता. सो दैट इज वेयर व्हेन द लॉजिक कम्स इन. ठीक है, लॉजिक क्या बता रहा है अब आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना, दैट हमें लॉजिक चाहिए H2O और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का. ठीक है, सो अगर एक मॉलिक्यूल H2O है तो उसमें आप नोटिस करोगे 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, ये हाइड्रोजन से आए और ये ऑक्सीजन से आए. एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अगर मेरे पास Na मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हमने ऊपर यहाँ पे देखा ना हमारे पास Na मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब वापस से यूनिटरी मेथड लगाना है एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू दिस क्वेश्चन मार्क विल बी 10 into Na. So you will get your answer that we have 10 into 6.02 into 10⁻23 electrons present. ठीक है, so this is how you do this question. Right now I hope that this is something which is helpful to the students. इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछो. I will again restart the chat option. Great. So yeah, pretty simple concepts to start with. ठीक है, I understand. अब आप लोग धीरे धीरे बेसिक और चीजें करोगे सॉल्व तो आपको और चीजें क्लियर होगी. ठीक है, आई कंटिन्यू टू ओके, लेट मी क्लोज द चैट. यहाँ पे किसी ने मुझे पूछा 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए, तो आपको पता है ना हाइड्रोजन H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है और हर हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है. ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है. राइट, सो आई होप
ये बेसिक्स हैं, ये तो आपको आने ही चाहिए. ऑल राइट, नाउ हैविंग सेड दिस, ठीक है, हैविंग सेड दिस, नाउ आई वुड वांट यू टू नाउ टेक सम होमवर्क. ठीक है, अब मैं आपको जो होमवर्क बता रहा हूँ वो आप दोबारा से ट्राई करो. ठीक है, डिलीजेंटली ट्राई करो. एंड एज आई सेड, योर कोऑपरेशन इज अटमोस्ट नेसेसरी, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, देर आर सम स्टूडेंट्स हु आर क्वाइट गुड एट दिस, उनका लर्निंग कर्व काफी शार्प है, तो उनके लिए मे बी पूरा लेक्चर यूजफुल नहीं रहा होगा, कुछ पार्ट्स उनके लिए यूजफुल रहे होंगे. ठीक है, आई एम श्योर दैट आई एडेड दोज एक्स्ट्रा थिंग्स सो दैट they also learn something new, something important, as well as then there are students in this class for whom this is something new for the first time and उनका learning curve slow है. So धीरे धीरे हम लोग इसी तरीके से proceed करेंगे. Each lecture will have everything for all the students that are there, right? Be patient and keep on solving the questions. Now as part of the homework, what I would request you is to do in the FBO section, ठीक है, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो है बुकलेट का, इस सेक्शन में आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो. ठीक है, 1 से लेकर 25, एक्सेप्ट सम जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया नहीं है. ये कॉन्सेप्ट आपको अगले लेक्चर में बताया जाएगा. स्किप 5, 6, 7, 11, 13, 16 एंड 19, ये आप स्किप कर दो. ठीक है, एंड FBS सेक्शन जो है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव. ठीक है, इसमें 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस आप ट्राई करो. ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज good to do, easy to do, most of the students should be able to do it. ठीक है, एंड आई थिंक इसमें एक FBO में आई वुड से क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है. लाइक इट्स अ गुड चैलेंजिंग क्वेश्चन, मतलब चैलेंजिंग इन द सेंस ट्रिकी है. अगर आपसे होता है तो पैट योर सेल्फ ऑन योर बैक, यू आर क्वाइट कॉन्सेप्चुअली क्लियर. अगर नहीं होता है तो आई एम देयर, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास एंड वर्क थ्रू इट. ठीक है, सो विद ऑल दिस सेड, हमारा लेक्चर का टाइम वैसे भी अब खत्म हो गया है, सो आई विल क्लोज द लेक्चर एंड आई विल शेयर दिस PDF. ठीक है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसका एक PDF बनाकर आपके ग्रुप पे भेजा जाएगा अभी थोड़ी सी देर में. सो यू विल बी एबल टू डू इट. एंड ओके, सो पेज नंबर इज समवन दैट स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी. ठीक है, पेज नंबर अभी कैसा है ना कि ओके, मतलब पेज नंबर में आपको बता देता हूँ, बट थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है बुकलेट को एक बार अच्छे से. तो ये FBO जो है ये पेज 123 पर है. ठीक है, दे काइंड ऑफ स्टार्ट एट पेज 123 एंड ये जो FBS है, ठीक है, लेट मी just come down. FBS they start on page 131. ठीक है, these are the sections that are there in the notes. So I'll be sharing the recording of the session as well. ये session record भी हो रहा है, तो इस session की recording भी आपके पास रहेगी. Multiple times you can go through it and understand, as well as the PDF of what I have written, ये भी आपके साथ share होगा. ठीक है, take it easy guys. डोंट टेक एक साथ मतलब टू मच ऑन योर सेल्फ कि मुझे पूरा का पूरा सब चीज एक साथ करना है, गेम भी आगे करना है, बुकलेट भी पूरी कंप्लीट करनी है. देयर इज नो रश. ठीक है, यहाँ पर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर. ठीक है, सो गुड लक गाइज. नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.